Hello students, I am Dr. Lalita Yadav from Hari Science and Maths Academy. Today we are going to discuss the topic area of a trapezium. Trapezium is nothing but a quadrilateral having four sides. All the quadrilaterals are having four sides. But what is the property of trapezium that differentiate it from rest of the quadrilaterals like rhombus, parallelogram? The trapezium is having only two sides parallel to each other. ठीक है. ट्रपेजियम की क्या होती है? सिर्फ ट्रपेजियम जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है. क्वाड्रिलेटरल है मीन्स उसकी फोर लाइन सेगमेंट्स हैं. उसके अंदर सिर्फ दो लाइन सेगमेंट्स ऐसी हैं दैट आर पैरेलल टू ईच अदर, जो एक दूसरे के पैरेलल होंगे. सो ट्रपेजियम की जो फिगर आएगी दैट इज लाइक this and this. This is two parallel sides of a trapezium. Now in this, let we name the first set A, B, C, D. AB side AB is parallel to side CD. This is the property of the trapezium. ठीक है, only two sides are parallel to each other. Now there are two basic terms that comes in the picture. One is the base of a trapezium and second one is the height or altitude. The base of a trapezium means the two parallel sides of a trapezium is known as the base of a trapezium. The two parallel sides, that is AB जो पैरेलल साइड है वो और CD जो पैरेलल साइड है, these are known as the base of the trapezium. So ये क्या हो गया हमारे पास? बेस हो गया ट्रेपेजियम का, and this is also called the base of the trapezium. Now what is the altitude or height of a trapezium? Height of a trapezium is the distance between the two parallel sides. जो दो पैरेलल साइड्स के बीच में डिस्टेंस है that is known as the height of the trapezium or altitude of the trapezium. This is known as the height of the trapezium. Now the question arises how to find the area of a trapezium. हम trapezium का area कैसे find out करेंगे? Area of trapezium इज इक्वल टू, अभी तक हम किसी क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करते थे तो उसमें क्या था कि जब हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करते हैं तो हम जनरली क्या करते हैं, उसको एक ट्रायंगल फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं या बेसिक स्ट्रक्चर की फॉर्म लाइक स्क्वायर रेक्टेंगल में अगर हम डिवाइड हो सकता है तो वो करते हैं. सेम केस यहाँ पर भी करना है. हमें क्या करना है, इसको एक ट्रायंगल फॉर्म में डिवाइड करना है. उसके लिए ट्रायंगल फॉर्म में डिवाइड करने के लिए मैं ऑपोजिट वर्टेक्सेस जो हैं उनको आपस में क्या करती हूँ, कनेक्ट करती हूँ. अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मेरे को टोटल ए बी सी डी का एरिया निकालना है. दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीडी. राइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस. Base in this case is considered to be the trapezium base, that is AB multiply by height. Let the height of the triangle is height of the trapezium is h. Trapezium की जो height है वो h है. So this distance from C to AB distance is also equal to height of the trapezium, that is h. Now the area of triangle ABCD is equal to half multiply by base. Base is nothing but CD, that is CD, and the height from point A to point D distance, if we measure it by drawing the right angle, this angle, then this also again comes out to be h. So taking the factor common, that is 1 by 2 multiplied by h, it comes out to be AB plus CD. Means area of trapezium is nothing but half multiplied by height of the trapezium multiply by sum of two bases of trapezium.
और इन दो बेसिस के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। वो क्या होगी, हाइट हो गई ट्रेपेजियम की। सो ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकलता है, फॉर्मूला है आया 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट मींस इन पैरेलल लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ टू बेसिस ऑफ द ट्रेपेजियम। Two bases are the parallel lines only, that is AB plus CD. This is how the area of a trapezium is calculated. Now we are trying the question on the basis of this. Now what is the question says, find the area of the given figure. हमें given figure दिया हुआ है, ठीक है, ये फिगर है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या है, हम इस फिगर को नाम देते हैं दैट इज A B C D E F, राइट। देखने से क्या लग रहा है कि ए बी सी डी जो है दैट इज अ ट्रेपेजियम, वो एक ट्रेपेजियम है। सी डी ई एफ जो है वो क्या है, एक दूसरा ट्रेपेजियम है। सो द एरिया ऑफ द गिवन फिगर, एरिया ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू area of trapezium ABCD plus area of another trapezium name is DEFC, ठीक है। अब ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स इसमें देखने से क्या लग रही है, AB एंड CD आर पैरेलल साइड्स, तो इनके बीच में हाइट क्या है, 10 सेंटीमीटर। सो 1/2 इज मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय द सम ऑफ द बेसिस ऑफ द ट्रेपेजियम। ABCD के जो बेस होंगे वो क्या होंगे, 21 एंड 15 एज दे आर पैरेलल साइड्स। तो ये पैरेलल साइड्स है, तो ये क्या हो गया, उस ट्रेपेजियम के बेस हो गए, तो 21 प्लस 15, this is the area of trapezium ABCD. Now similarly the area of trapezium CDEF is equal to half multiplied by height. Height is nothing but in this case is 12, as distance from two parallel bases are given as 12, so it is 12, and the parallel sides of the trapezium are 15 plus 24. This comes out to be 2 multiplied by 5. This is 5 multiplied by 36 plus 6 multiplied by 39. Now this comes out to be 180, and here this value comes out to be 234. So the answer comes out to be 414. All the sides are given in centimeters, so area is coming in centimeter square. This is the area of the given figure. ये क्या है, given figure का area है। Now let us try the second question. अब second question try करते हैं। Now what the question says in question number 2, if the perimeter of a trapezium is 52 centimeter, trapezium का जो perimeter है that is 52 centimeter. Let us draw the trapezium first. This is the ट्रेपेजियम ABCD, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम is nothing but the sum of all sides, that is AB plus BC plus CD plus DA. It is given as 52 centimeter. ये कितना दे रखा है, 52 सेंटीमीटर दे रखा है। Its non-parallel sides are equal to 10 सेंटीमीटर each. जो non-parallel sides है, non-parallel sides कौन सी हैं, AD and BC are the non-parallel sides. ये कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। This is 10 सेंटीमीटर, this is 10 सेंटीमीटर। Now and its altitude is 8 सेंटीमीटर, और जो ये altitude ये दे रखा है that is 8 सेंटीमीटर। वो कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, हमें क्या ड्रॉ करना है,
फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। नाउ पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपेजियम इज 52 सेंटीमीटर। ए बी जो है वो हमें पता नहीं है, तो राइट इट एज ए बी। बी सी जो है दैट इज गिवन एज 10। सी डी जो है वो हमें पता नहीं है। डी ए जो है दैट इज 10। सो 52 माइनस 20 इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी। ठीक है, दिस कम्स आउट टू बी 32 सेंटीमीटर। 32 सेंटीमीटर क्या है? ए बी प्लस सी डी। ठीक है, ए बी प्लस सी डी मीन्स sum of two bases of the trapezium is 32 centimeter. Now the formula for the area of trapezium, area of trapezium according to the figure it is 1 by 2 multiply by 8 centimeter. ठीक है, multiply by sum of two parallel sides that is AB plus CD, and AB plus CD value is obtained as 32 previously. So this comes out to be 1 by 2 multiply by 8 multiply by 32. So this comes out to be 68 cent. Sorry, 128 centimeters square. ठीक है, this is how you can find out the area of a trapezium if the perimeter of the trapezium is given and its non-parallel sides are provided to you. Then you can find out the area of trapezium in this way. Now one more question we try. Now what is given in the question? The area of a trapezium field is 480 meters square. So draw the trapezium first. This is the trapezium. Name is A, B, C and D. ठीक है, एरिया जो है वो हमें कितना, इस ए बी एरिया की एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is given as 480 meter square. The height is 15 meter. हाइट जो है वो कितनी है? 15 मीटर है. Let this point is L and it is given as 15 meter. ठीक है, ये कितनी दे रखी है? 15 दे रखी है. And one of the parallel side is 20 meter. Let this side AB is given as 20 meter. Right? Now, according to the formula, area of trapezium ABCD is nothing but 1 by 2 multiply by height, that is BL, multiply by sum of parallel bases, that is AB plus CD. ठीक है, BL जो given है that is given as 15 centimeter and AB जो given है that is 20 meter plus CD की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करनी है. एरिया जो हमें दिया हुआ है that is 480. वो कितना दिया हुआ है? 480. This 480 multiply by 2 and this divided by 15 is equal to 20 plus CD. Right? Cut it by 5. This comes at 3. ठीक है, ये 3 पे जाएगा और ये जाएगा 9 5 45 and 6. 3 से फिर से हम कट करेंगे. This comes out to be 32. Answer is 64 is equal to 20 plus CD and CD value is coming as CD is coming out to be 64 minus 20, that is 44 मीटर. ठीक है, तो यहां पर जो दूसरी साइड की वैल्यू आई है, दिस वैल्यू CD की वैल्यू जो आई है दैट इज कमिंग एज 44 मीटर. ये कितनी आती है? 44 मीटर आती है. अब एक और क्वेश्चन जो है वो ट्राई करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the sum of lengths of bases of a trapezium whose altitude is 11 centimeter and area is 0.55 meter square. Right?
In the question, it is talking about the trapezium. So we draw the diagram first. This is the trapezium and name the trapezium, that is P, Q, R, S. What is given is the area of the trapezium is given. Area is given as 0.55 meter square, right? Altitude is given as 11 centimeter, but the unit of both area and altitude are different, so we convert them into the same unit. Convert cm into meter. On converting this cm into meter, this comes out to be 11 divided by 100, as 1 meter is equal to 100 centimeter. So 0.11 meter, right? This is the altitude of the altitude is nothing but the distance between the parallel sides of the trapezium or the two bases of the trapezium. ठीक है, अब एरिया अगर हम फाइंड आउट करें तो एरिया इज नथिंग बट इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ लेंथ ऑफ बेसिस ठीक है। एरिया हमें गिवन है दैट इज 0.55, दिस इज 1/2 एज इट इज, एल्टीट्यूड इज 0.11 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ लेंथ ऑफ बेसिस, सम ऑफ लेंथ ऑफ बेसिस, right? From here it comes out to be 0.55 multiplied by 2 and this divided by 0.11 is equal to sum of length of bases. If we remove these two zeros, put 100 in the denominator, and if we remove these two zeros, put 100 in the numerator, right? So 100 is cancelled out with 100. 11 से 55 जाता है 5 पर, तो sum of length of bases is comes out to be 10 meter. This sum of length of bases is comes out to be 10 meter. This is the solution of the question. Now in such type of questions, please check whether all the things are given in the same unit. यूनिट जो है वो क्या हो, सेम हो. अगर यूनिट सेम नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, आपको सेम यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा. नाउ वी विल ट्राई वन मोर क्वेश्चन. नाउ व्हाट इज आस्क्ड इन द फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है वो हमें फाइंड आउट करना है, और क्वाड्रिलेटरल जो है उसका डायग्राम जो है वो दे रखा है, दैट इज ए बी सी एंड डी. लेंथ ऑफ ए बी इज 13 मीटर, BC is 10 centimeter, CD is 7 centimeter, and the angle DAB is 90 डिग्री. ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है. अब इस केस में आप एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे फाइंड आउट करोगे. हमारे पास वही दो चीजें हैं, लेकिन पैरेलल साइड्स जो है वो हमें पता है, दैट इज AB जो है, AB इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर गिवन है. CD जो है दैट इज 7 सेंटीमीटर, ये भी हमें गिवन है. बट ये क्या है, एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, क्योंकि ये दो साइड्स तो पैरेलल हैं हमारे पास, जो ये वाली साइड है ये पैरेलल नहीं है. तो हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए. बट द हाइट इज नॉट गिवन, हाइट जो है वो गिवन नहीं है. उसकी जगह हमें क्या गिवन है कि एंगल DAB जो है वो 90 डिग्री का एंगल है. तो 90 डिग्री का अगर ये एंगल है तो ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा. ये हमने एक प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ी थी, लीनियर इंटीरियर एंगल के सम की प्रॉपर्टी, कि वो हमारे क्या होते हैं 180 डिग्री के इक्वल होता है. तो ये एंगल भी मेरा क्या होगा, 90 डिग्री होगा. तो उससे मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पर एक और इसके पैरेलल DA के पैरेलल एक लाइन जो है वो मैंने यहाँ ड्रॉ की. लेट दिस इज M. Now DA is parallel to CM. अब
CM लाइन के वो पैरेलल है, ठीक है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये बन गया यहां से लेकर के ये यहां तक आ गया मेरे पास 7 सेंटीमीटर। दिस इज कम्स आउट टू बी CM 7 सेंटीमीटर। नाउ टोटल लेंथ AB की मुझे पता है दैट इज 13 सेंटीमीटर, AM की लेंथ जो है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर है। सो MB की जो लेंथ आएगी, MB इज कमिंग आउट टू बी, MB is coming out to be AB minus AM. This comes out to be 13 minus 7, that is 6 सेंटीमीटर। वो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। अब ये आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये एंगल भी 90 डिग्री है, तो यहां पर ये एंगल जो है वो भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। सो नाउ द ट्रायंगल CMB is a राइट एंगल ट्रायंगल। वो क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल बनने से क्या हुआ कि हम उसमें क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, साइड का स्क्वायर दैट इज CM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर इज इक्वल टू CB स्क्वायर। दिस इज ड्यू टू यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके ये आ गया हमारे पास। अब CM जो है वो मुझे पता है कि उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता। CM स्क्वायर आई डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CM स्क्वायर। MB की वैल्यू मुझे पता है दैट इज 6, तो यहां पर रखूंगी मैं 6 का स्क्वायर। CB इज गिवन इन द पिक्चर दैट इज 10 स्क्वायर, so put out that CM square plus 6 का square is 36 is equal to 10 square is 100. So CM square is nothing but 100 minus 36, that comes out to be 64, and CM is nothing but under root of 64, that is comes out to be 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये आ गई मेरे पास हाइट जो आ गई, दैट इज अल्टीमेट द क्वेश्चन वी नीड द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। हमें क्या चाहिए थी, हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम चाहिए था। तो ये सारा तामझाम जो है, ये सारा सॉल्यूशन जो है हमने किस लिए किया है, ताकि हमारा क्या मिल सके, हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम मिल सके। नाउ व्हाट वी डू, नाउ वी फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एज आई टोल्ड यू that trapezium is also a quadrilateral, so we can say it as area of quadrilateral, or trapezium is equal to 1 by 2 multiply by height. Height is nothing but CM multiply by the sum of bases, that is CD plus AB. Now this comes out to be 1 by 2, CM is 8 centimeter multiply by CD, CD is 13 plus A is 7. So on solving this, this comes out to be 4 multiplied by 20, that is 80 cm square is the area of the quadrilateral given in the figure. ये area of quadrilateral इस क्वेश्चन में क्या आया है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ वी विल ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now what is given in the question number 6? The parallel sides of a trapezium are 20 centimeter and 10 centimeter. Now with reading the from reading the first line of the question, we get to know that it is talking about the trapezium. Draw first the trapezium. This is the trapezium. ठीक है, let the trapezium be A, B, C, D. Right. The parallel sides of a trapezium are 20 centimeter and 10 centimeter. कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है और 10 सेंटीमीटर दे रखी है। So this is 20 cm. AB is equal to 20 cm and CD is equal to 10 cm. Right. Its non-parallel sides in question, it is given that its non-parallel sides are both equal. दोनों non-parallel sides जो हैं वो equal हैं, that is BC जो है वो किसके equal है, DA के equal है, and each being 13 सेंटीमीटर, और इनकी लेंथ जो है वो क्या है, 13 सेंटीमीटर है। This is 13 cm. This is also 13 cm. राइट।
अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इससे फाइंड आउट करना है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में क्या चाहिए मुझे, पैरेलल साइड्स की लेंथ चाहिए, वो मुझे क्वेश्चन में गिवन है। अब मुझे दूसरी चीज क्या चाहिए, हाइट या एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रेपेजियम चाहिए, वो मुझे नहीं दिया हुआ, बट इंस्टेड ऑफ दैट इट इज गिवन दैट पैरेलल नॉन पैरेलल साइड्स आर 13 सेंटीमीटर। तो उसको निकालने के लिए अब क्या करते हैं हम, वी ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू DA, ठीक है। DA के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस लाइन, now this is, let this point is M, right? Draw a line parallel to DA, that is CM. Now अब क्या हुआ, CD जो है that is parallel to AM, वो किसके पैरेलल है, AM के पैरेलल है, एंड DA जो है that is parallel to CM, वो किसके पैरेलल है, CM के पैरेलल है। So from this it is concluded that AMCD is a parallelogram। ये क्या बन गया हमारा, एक पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम बन गया तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर, और CM की जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, 13 सेंटीमीटर, और ऑपोजिट साइड जो होती हैं वो मेरे पास क्या होती हैं, बराबर भी होती हैं, ठीक है। तो अब ये जो है ये क्या आ गया, 13 सेंटीमीटर आ गया। AMCB जो है वो पैरेललोग्राम बन गया, तो CM की जो लेंथ आ गई दैट कम्स आउट टू बी 13 सेंटीमीटर, और AM की जो लेंथ आएगी दैट इज पैरेलल टू CD। वो AM जो है वो मेरा किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। CD की लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, तो AM की जो लेंथ होगी दैट कम्स आउट टू बी 10 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ MB, MB की जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, AB माइनस AM, दैट कम्स आउट टू बी 10 सेंटीमीटर, 20 माइनस 10 दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब यहां तक तो सॉल्यूशन निकल गया कि मेरे पास ये लेंथ जो है ये भी कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर आ गई। एक मेथड तो मेरे पास क्या है कि मैं पैरेललोग्राम का एरिया निकालूं और दूसरा ट्राइंगल का एरिया निकालूं और दोनों को ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ जाएगा। बट अब यहां से कंक्लूजन क्या निकला, यहां से कंक्लूजन ये निकलता है कि CM जो है दैट इज ऑल्सो 13 सेंटीमीटर और CB जो है वो भी 13 सेंटीमीटर है। CM एंड CB बोथ आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इससे कंक्लूड ये निकला कि ट्राइंगल CMB जो होगा वो क्या होगा, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है कि दो साइड्स जो होती हैं ट्राइंगल की वो मेरी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब जो दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके बीच में जो वर्टेक्स है, ठीक है, इन दोनों साइड्स के बीच का वर्टेक्स क्या है, C है। इस वर्टेक्स को जब मैं ऑपोजिट साइड से ज्वाइन करूंगी, इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, लेट दिस पॉइंट इज N, तो क्या होगा, MN जो होगा, MN इज इक्वल टू NB, वो किसके इक्वल होगा, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। MN जो है वो NB के इक्वल होगा एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। AB की लेंथ मुझे पता है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो ये आ जाएगी मेरे पास इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर। यानी कि मेरे पास जो है हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम, MN इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। MN जो है वो क्या है, ट्रेपेजियम की हाइट है, ठीक है। अब ये आ गया मेरे पास, यहां से कितनी आई, नहीं सॉरी, CN जो है दैट इज द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। NB की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। यहां से मैंने ये क्या ड्रॉ किया था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। तो यूजिंग इन ट्राइंगल CNB कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि सम ऑफ द साइड स्क्वायर का जो साइड के स्क्वायर का जो सम है
दैट इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो साइड कौन कौन सी है, सी एन का स्क्वायर प्लस एन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी का स्क्वायर। अब यहां से क्या आता है, सी एन मुझे पता नहीं है, सी एन क्या है, हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम है, ठीक है, प्लस एन बी कितना दे रखा है, कितना आया है मेरे पास 5 स्क्वायर आया है, इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। यहां से अगर मैं आगे निकालती हूं तो सी एन स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 169 ये आता है। यहां पे अगर मैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करूं तो सी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 that comes out to be 144. So Cn is nothing but square root of 144. It means 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मेरे पास हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम जो है वो क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2। इस फिगर के अकॉर्डिंग हाइट कितनी है ट्रेपेजियम की, दैट इज Cn मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं, AB प्लस CD का सम। ठीक है, पुट ऑल द वैल्यूज 1/2। Cn की वैल्यू कितनी आई थी मेरे पास, 12 सेंटीमीटर आई थी, तो पुट हियर 12 here. AB is given as 20 and CD is given as 10. This is 6. 6 multiplied by 30, answer comes out to be 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। These types of questions are found in your textbook, school textbook, or in your competitive exams book. If you are facing any difficulty in solving such type of questions, please post your query in the comment box with the question pick. I will provide you the solution of that question. And if you still want that where you are doing mistake in your questions, आप अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, तो अपने सॉल्यूशन की पिक भी जो है वो कमेंट बॉक्स में जो पोस्ट करें। ठीक है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द वीडियो नोटिफिकेशन। That is, this topic is over for today. Thank you.